Good evening to everybody. In the last lecture, we discussed on different types of information system, in which we discussed on information system at national level and information centers which worked at international level. We are watching information about that. So up to ERIC information we have been finished in the last lecture. ERIC means we have been started ERIC in the last lectures. So let's start again from the ERIC information system. What is about this system? ERIC is nothing but the Education Resource Information Center. There are 4 alphabets are come together and it's become abbreviation, short form, and its full form. Each word stand for their meaning. E for education, R stand for resource, I stand for information, and C stand for center. So ERIC means Education Resource Information Center. Okay, it is a kind of center where we can get the education, the resources of education related information we can get from this information system. So the foundation here is given here. This information system established in 1966. ERIC is an online digital library of education research and information. ERIC is sponsored by the Institute of Education Science. So which is the organization it is sponsored by? ERIC is sponsored, the name is given there, Institute of Education Science, okay, of the US Department of Education, right? So the name of department is given there, Institute of Education Science. This department is belong to the US Department of Education. This is founded in 1966. It provides easy access to education literatures. It basically creates the education literature to support the use of education, research and information to improve practice in learning, teaching and educational decision making and research. Okay, so in which field and for what purpose this ERIC is established? Okay, to provide, to improve, to support the use of educational research, to improve the information practice in learning, teaching, educational decision making and research. Okay, so on the following topics, on the following criteria, this information system will be worked. And prior to 2004, 16 ERIC clearinghouse is devoted to particular topic within education, were operated out of universities and professional association across the country. So in this way, in 2004, near about 16 clearinghouse was established by the ERIC in all over the country, and is devoted to particular within education were operated out of universities and professional association across the country. There were also multiple sites for searching ERIC. So there are many sites also established or developed by the
this information system. And the IRIC clearinghouse was comprehensive information service in adult continuing education, career education, vocational, technical education, and employment and training, located at the Center on Education Training for Employment, Ohio State University. So in this way, IRIC, this center was established at Ohio State University, and there are so many on so many topics the education was provided by this information system to the users, to the people. So on which subject this information system is provided the education? Some topics are given here: education, on career education, on vocational and technical education, on employment and training, at located Center on Education and Training Employment. Okay, so there was Center of an Employment and Training, which located at Ohio State University, and from there on many topics the education was provided at that time. Unfortunately, all IRIC clearinghouse were closed of December 2003. The US Department of Education consolidated IRIC's work under the single contract in 2004. The IRIC website is the result. Okay, so in this way, but after some years, in December 31st 2003, all the clearing houses which was established by the IRIC was or were closed there. तो सभी प्रकार के जो क्लियरिंग हाउस IRIC के द्वारा स्थापित किए गए थे वो सभी क्लियरिंग हाउस 31 दिसंबर 2003 में बंद किए गए. ओके, ये अनफॉर्चुनेटली हुआ, लेकिन कब इस्टेब्लिश हुए थे इसकी डेट जो है ये हमें ध्यान में रखना है. 2004 in 2004. Okay, then countries serve: United States, United Nations, Kingdom, Australia, Canada, New Zealand, worldwide parent organization. Okay, so in this way, in which country IRIC has been provided the services or serve, the name of the countries are given here: United States, United Kingdom means UK, Australia, Canada, New Zealand, and worldwide parent organization. Okay, worldwide means as a parent organizations all over the world the information is provided by the IRIC there. Okay, IRIC as US National Education Information Network is a part of National Library of Education, US Department of Education. So there is Education Department in United Nations, and IRIC is a part of National Library which provide the national education to the country, and this is the Department of US National Education Information Network. This is called this big network which is worked in the field of education in US. तो इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो US का एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके जरिए US नेशनल एजुकेशन इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्रिएट किया गया, और ये जो IRIC है इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशन. नेशनल
लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशन की जो लाइब्रेरी है उसका ये पार्ट है, इसका ये प्रोग्राम है। द एजुकेशन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर दैट इज कॉल्ड इरिक इज एन ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल जो लाइब्रेरी है, इरिक जो है ऑनलाइन एजुकेशनल लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है, और ये बेसिकली एजुकेशन रिसर्च और इंफॉर्मेशन फील्ड में काम करती है। ओके, तो उसके हिसाब से इसे नाम दिया गया है। उसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये जो डिजिटल लाइब्रेरी है, किस फील्ड में काम करती है, क्योंकि द नेम इज गिवन हियर एजुकेशनल मीन्स it work in the field of education, and then research means it work in the field of research also, and information it work in the field of information. So in this way ERIC is sponsored by the Institute of Education Science of the United States Department of Education. तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ERIC is sponsored by the Institute of Education Science of the United States Department of Education. Okay, the mission of ERIC is to provide comprehensive, easy to use, searchable, internet-based bibliographic full-text database of education research and information for educators, researcher and general public. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मिशन है इरिक का क्या करता है, कॉम्प्रहेंसिव, इजी टू यूज, सर्चेबल. ओके, इट इज़ यूजर फ्रेंडली फॉर द यूजर्स, it is easy to use, it is searchable, we can get or we can search information immediately like Google, internet based bibliographic and full text database. Okay, both kinds of the database is included in this system. So education, research and information are essential to improving teaching, learning and educational डिसीजन मेकिंग. तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इरिक जो है टीचिंग इम्प्रूवमेंट के लिए, लर्निंग और एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग के लिए हमें उपयोगी साबित होता है. ओके, सो इरिक प्रोवाइड्स एक्सेस टू 1.5 million of bibliographic records, citation, abstract and other pertinent data. तो यहाँ पर हमें जानकारी दी गई है कि इरिक जो डेटाबेस है, जो लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी, 1.5 मिलियन बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को धारण करती है या उसमें समाविष्ट किए गए हैं. तो उसमें साइटेशन आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आते हैं और अदर पर्टिनेंट डेटा भी आता है, फुल टेक्स्ट वगैरह, जर्नल्स आर्टिकल भी आते हैं एंड अदर एजुकेशन रिलेटेड मटेरियल भी उसमें आता है. विद हंड्रेड्स ऑफ न्यू रिकॉर्ड्स एडेड एवरी वीक. ओके, सो हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड्स एडेड एवरी वीक्स. फ्रॉम दिस वी कम टू नो दैट तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये डेटा कितना रीच है और डेटाबेस कितना रीच है और ये लाइब्रेरी कितनी इम्प्रूव है और एडवांस है, यहाँ पर हमें इस जानकारी के द्वारा पता चलता है. अ की कंपोनेंट ऑफ इरिक इज इट्स कलेक्शंस ऑफ ग्रे लिटरेचर्स इन एजुकेशन विच इज़ लार्जली अवेलेबल इन फुल टेक्स्ट इन एडोब PDF फॉर्मेट.
Approximately 1/4 of complete ERIC collection is available in full text materials with no full text available, and can often be accessed using links to publishers website and or library holdings. ERIC usually includes education related article in database. तो जैसे कि हमने देखा, ERIC जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है या डिजिटल लाइब्रेरी हम उसे कह सकते हैं या डेटाबेस कह सकते हैं, ए यहाँ पर एजुकेशन के संबंधी में जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिसर्च है, जो लर्निंग है, जो टीचिंग है, उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करती है। तो इसलिए एजुकेशन के फील्ड में किसी भी प्रकार को कोई समस्या आती है या रिसर्च एजुकेशन रिसर्च के संबंध में किसी को भी इंफॉर्मेशन या जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो वे इस डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं। वे इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए उन्हें जो इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकते हैं। So ERIC usually includes education related articles in database. Sample article include the economic, social, administrative, pharmacy, discipline in US school and college of pharmacy. Okay, so the examples are also given on which topic the information is included in this database, in this digital library. Then collections, books and documents. ERIC contains entries for nearly 5 lakh books and documents. Approx 40,000 are related to some aspect of adults education. Most are available in either microfiche or paper copy from ERIC documents reproduction service. तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ERIC डॉक्यूमेंट रिप्रोडक्शन सर्विस यहाँ पर क्या कर सकती है और किस प्रकार के बुक्स और कितनी संख्या या मात्रा में बुक्स यहाँ पर हमें मिलेंगे या डिजिटल लाइब्रेरी में अवेलेबल है, इसकी जानकारी यहाँ पर हमें दी गई है। तो नियर बाय 5 लाख बुक्स हमें या डॉक्यूमेंट्स हमें इस डेटाबेस से प्राप्त हो सकते हैं और वी कैन रेफर। और अप्रोक्स 40,000 अडल्ट एजुकेशन के संबंध में है। मोस्ट आर अवेलेबल इन आइदर माइक्रोफिच या पेपर कॉपी के फॉर्मेट में हमें मिलते हैं। और मल्टी मीडिया ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, इसमें भी हमें ERIC is limited to print materials. Occasionally reference found to audio visual materials must be acquired from the original source. जैसे कि हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की, ERIC it is a kind of digital library, it is a kind of database, it is a kind of online information system. तो तीनों नाम से हम इसको जान सकते हैं या उसके बारे में बोल सकते हैं। It is called digital library, it is called online database, it is called online information system. अब तीनों में से कोई भी नाम उसे दे सकते हैं, कह सकते हैं। तो बेसिकली ऑनलाइन होने की वजह से सभी जो मटेरियल है वो पेपरलेस है। मिनिमम बुक्स हमें पेपर के फॉर्मेट में मिलते हैं, लेकिन सभी जो कलेक्शन है, मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, तो ऑडियो विजुअल फॉर्म में हमें मिलते हैं या सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमें मिलते हैं। ओके,
तो यहाँ पर कुछ सर्विसेज और स्पेशल एक्टिविटीज़ दी गई है कि जो इरिक के द्वारा ली जाती है। तो उसमें पब्लिकेशन प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि ऑन द इरिक वेबसाइट है, ACV पब्लिकेशन है, जर्नल्स ऑन द वेब है, लिंक्स ऑफ साइट फुल टेक्स्ट रिसोर्स है, लिंक्स टू रिलेटेड साइट है। ओके, तो ऑल दीज आर नथिंग बट द सम प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू द इरिक। इरिक के संबंध में प्रोडक्ट्स है। Clearing house publication were intended to meet the information needs of variety of audience by selecting, synthesizing, explaining, reviewing materials from the IRIC database and other sources. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्लीयरिंग हाउस पब्लिकेशन were intended to meet the information needs of varieties of audience by selecting, synthesis, explaining, reviewing material from the IRIC database and other sources. IRIC Digest summarize current information on specific educational topics based on research findings and critical literature in field. To access searchable field file of the full text all IRIC Digest produced by all IRIC clearinghouse, go to this website. Okay, by visiting this website we will get all clearinghouse their information which are related to the clearinghouse. ट्रेंड्स एंड इशू अलर्ट, ये सर्विस भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। प्रोवाइडेड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ एन इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड रिलेटेड इश्यूज विद द ऑटोमेटेड लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज including organization and website. So those are current trends and issues alert which are related to our education subject. All the information or alert are provided by this system to the users. Then myths and realities explored, myth associated with the topics in adults, careers and vocational education by examining commonly held assumptions that are taken for granted but are not accurate. Okay. Practice application brief developed for classroom teachers and other practitioners. These products provided specific examples derived from research finding that could be applied in practice setting. Practitioner files designed to assist adults, career and vocational educational practitioners. Each editions of this product included some or all of the following: background information, practical application article, glossaries and list of related to print online resources. Okay, तो इस तरह से हमें यहाँ पर इरिक के द्वारा जो अलग अलग सर्विसेज और प्रोडक्ट की सर्विस प्रोवाइड की जाती है इनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और उसके अलावा इरिक फाइल भी हमें यहाँ से मिल सकती है कि जिसमें बुलेटिन पब्लिश ट्वाइस होता है और कंटेंट न्यूज़ ऑफ द इरिक सिस्टम, इंफॉर्मेशन अबाउट सर्विसेज, प्रोडक्ट्स एंड ऑर्डर फॉर्म पब्लिकेशन होता है, मेजर क्लीयरिंग हाउस पब्लिकेशन, compilations intended to provide current knowledge on high priority topics in the clearing house subject areas. Okay, then bibliographies
भी हमें यहाँ पर मिलती है, यानी कि वेबसाइट, लिस्ट ऑफ वेबसाइट हो सकती है, वेब ओनली पब्लिकेशन, बिब्लियोग्राफी मीन्स, और aesthetic in young children's lives from music, technology, curriculum perspective, and digital games impact on students learning effectiveness of correct meditation. Okay, so those things which are related to the child literatures, all these things we can get from this website. The Eric collection began in 1966. So when it was begun 1966, because this is the year of establishment of ERIC, and that is why from that moment collection was begun from 1966. Content records of variety publication types of including. So which kind of the collection are included in the ERIC collections? The list is given there: journals, article, books, research synthesis, conference paper, technical report, dissertation, policy papers, other education related materials. Okay. So ERIC provides public with centralized website for searching the ERIC collections and submitting materials to be considered for inclusions in the collection. Users can also access the collection through commercial database vendors, statewide and institutional network, and internet search engines to help users find the information they are seeking. ERIC produce and control vocabulary and the thesaurus of ERIC descriptor. This is carefully selected list of education related words and phrase used to use tag materials by subject and make them easier to retrieve through search. तो इस तरह से हमें अलग अलग जो सर्विसेज प्रदान की जाती है ERIC के द्वारा, तो इससे हमें लाभ होता है और हम इसका एज ए यूजर करके लाभ ले सकते हैं और औरों को भी बता सकते हैं कि किस तरह से जानकारी यहाँ पर आपको मिल सकती है. Prior to January 2004, the ERIC network considered as a 16 subject specific clearing houses. So how many clearing houses are included or consisted in this network? Subject specific 16. Okay, various adjunct and affiliated clearinghouse and 3 support components. The program was consolidated into single entity and with the upgraded system and paper based process converted to electronic, thus streamlining operations and speeding delivery content. So in this way we can get the information about ERIC information system, and I think there is no doubt about that. If you read, then you will understand what kind of the information system is that. Okay, and on which subject it will work and what kind of its scope and natures and what is the objective of ERIC. तो ये सभी प्रकार की जानकारी आपको जब आप पढ़ते हो तो आपको प्राप्त हो सकती है. इसमें अंडरस्टैंडिंग की कोई बात नहीं है. यू जस्ट रिमेंबर दिस बाय रीडिंग. आपको पढ़कर केवल ध्यान में रखना है कि ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है किस फील्ड में काम करती है, इसका स्वरूप क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. ओके, और किस प्रकार की सर्विसेज इस सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाती है. So this finished here ERIC. After that we will start the next information system
which worked at international level, that is called the BIOSIS. Okay, BIOSIS means here, BIOSIS is a short form. Bio plus S plus I plus S. Okay, so bio stand for biological, S stand for soil, I stand for information, and system stand for S stand for the system. तो इस तरीके से हम बायोसिस का फुल फॉर्म यहाँ पर बता सकते हैं, और बाय द नेम इट इंडिकेट इटसेल्फ, नाम से ही हमें पता चल जाता है कि किस फील्ड में इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करता है। तो स्टार्टिंग में बायोलॉजिकल यानी कि बायोलॉजी इस सब्जेक्ट दिया गया है, बायोलॉजी इस सब्जेक्ट में ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है काम करती है। और जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो ये केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है, और इसमें उसके नाम से जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो जब भी हम इस तरह का नाम पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हमें तुरंत पता होना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम किस फील्ड में काम करती है। तो नाम से ही हमें उसका फील्ड का पता होना ज़रूरी होता है, ताकि हमें बैकग्राउंड जो इंफॉर्मेशन है वह प्राप्त हो जाती है। ओके, सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन अबाउट दैट। प्रोड्यूस बाय वेब ऑफ साइंस ग्रुप। ओके, तो वेब ऑफ जर्नल आपने सुना होगा, वेब ऑफ साइंस। तो वेब ऑफ जो ग्रुप है उसके द्वारा ये प्रोड्यूस हुआ है बायोसिस, प्रीव्यूज आर। ओके, एज एन एक्सपांसिव इंडेक्स टू लाइफ साइंस बायोमेडिकल रिसर्च फ्रॉम जर्नल्स, मीटिंग बुक्स एंड पेटेंट्स। ओके, तो ये क्या है फिर? इंडेक्स है, इंडेक्स टू लाइफ साइंस एंड बायोमेडिकल रिसर्च फ्रॉम जर्नल्स। मीटिंग्स है, उसमें बुक्स है, पेटेंट्स है, इस तरह से जर्नल भी है, मीटिंग्स है, बुक्स है और पेटेंट्स है। द डेटाबेस कवर्स प्री क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें प्री क्लिनिकल ओके और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऐड किए गए हैं, और ये प्रैक्टिस बे होते, केस स्टडी जिसे हम बोलते हैं, उसका समावेश इसमें होता है। ओके, मेथड एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, एनिमल स्टडीज एंड मोर, includes BIOSIS indexing and enhanced mesh IDs terms. तो इसके जरिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किस फील्ड में काम करता है और किस ग्रुप का ये प्रोडक्ट है या सर्विस है। वेब ऑफ साइंस ग्रुप जिसे बोलते हैं उसका ये प्रोडक्ट है और उसके द्वारा ये प्रोड्यूस किया गया है। ओके, उसमें मेज डिसीज टर्म्स भी समावेश किया गया है। उसके के बेनिफिट्स क्या है देखते हैं। अनकवर रिलेवेंट रिजल्ट इन मोर फील्ड ऑफ लाइफ साइंसेस रिसर्च दैन एनी अदर सोर्सेस इन द वर्ल्ड। ओके, तो लाइफ साइंस के संबंध में जो भी फील्ड है, जो भी रिसर्च है, यहाँ पर कवर किया जाता है। ओके, एक्सप्लोर बायोमेडिकल मीटिंग्स एंड पैटर्न्स इन बुक्स कंटेंट्स नॉट अवेलेबल इन वेब ऑफ साइंस कोर कलेक्शन और मेडलाइन। तो इसमें साइंस कोर कलेक्शन और मेडलाइन वेब ऑफ
साइंस कोर कलेक्शन और मेडलाइन भी समाविष्ट किया जाता है। फाइंड हाई इम्पैक्ट आर्टिकल फ्रॉम पीयर रिव्यू influence journals, discover emerging trends that helps you pursue successful research and grant acquisitions. Okay, so integrate searching, writing and biography creations into one streamlined process. सब्जेक्ट इंक्लूड, इसमें सब्जेक्ट कौन से है देखते हैं। तो ट्रेडिशनल टॉपिक्स इसमें इंक्लूड है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है, माइक्रोबायोलॉजी है। इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज उसमें क्या आता है, एक्सपेरिमेंटल, क्लिनिकल, वेटरनरी मेडिसिन है, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर्स एंड न्यूट्रिशन के संबंध में इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्राप्त होती है। एग्रीकल्चर्स एंड न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है, पब्लिक हेल्थ रिलेटेड एरियाज, मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। मैकफाइल डेटा 1962 26 track over 19 years of vital data and find supporting of repeating data you need. More back files give you powers to conduct deeper, more comprehensive searches to track trends through times. तो फ्रॉम 1926 1926 से 2026 तक ये जर्नी है। तो ट्रैक ओवर 19 ईयर्स नियर अबाउट। ओके, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें बैक फाइल के जरिए यहाँ पर मिलती है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिलेवेंट कवरेज इसमें मिलता है। एवरी टाइम every items included BIOSYS preview has met the high standard of objective evaluation process that eliminate excess and delivers data that is accurate, meaningful and timely. Okay, तो इंसाइटफुल एनालिसिस ऑप्शन इसमें हमें मिलता है। फाइंड हिडन ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, गेन इंसाइट इनटू एमर्जिंग फील्ड्स ऑफ रिसर्च एंड आइडेंटिफाई लीडिंग रिसर्चर्स, इंस्टीट्यूशंस, जर्नल्स विद एनालाइज टूल। ओके, तो इस तरह से हमें अलग अलग प्रकार की जो जानकारी है, जो एजुकेशन, रिसर्च, लर्निंग के संबंध में हमें यहाँ पर मिल सकती है। तो द वेव ऑफ नॉलेज एंड एडवांटेज, तो इसका एडवांटेज क्या है। एक्सेसिंग बायोसिस प्रीव्यूज, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट और जोलॉजी रिकॉर्ड्स ऑन वेव नॉलेज प्लेटफॉर्म मीन्स यू कैन साइमल्टेनियसली सर्च दिस डेटाबेस। तो हमें इस डेटाबेस से जोलॉजी रिकॉर्ड्स, बायोलॉजी के रिकॉर्ड्स, सभी प्रकार के रिकॉर्ड्स यहाँ पर मिलते हैं। और ये एनालिटिकल टूल करके काम करता है। डिस्कवर वाइटल ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, द टॉप ऑथर्स, इंस्टीट्यूशन, जर्नल्स एज वेल एज हॉट टॉपिक्स एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स, इसके संदर्भ में हमें यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। ओके, सो अलर्टिंग एंड RSS feeds, keep up to date by setting up emails and alert or RSS feeds for your saved searches. EndNote Web, save and manage your references online with EndNote Web
fully integrated into wave of knowledge and freely available to any users. तो इस तरह से हमें अलग अलग प्रकार की जो रेफरेंस है ऑनलाइन वो भी हम सेव कर सकते हैं, एंड नोट निकाल सकते हैं, वेब का उपयोग कर सकते हैं, और नॉलेज फ्रीली अवेलेबल होता है वो प्राप्त कर सकते हैं. एक्सेस, ऑर्गेनाइज एंड सेंड योर रेफरेंस एज यू सर्च, शेयर एंड एंड नोट फोल्डर्स. तो एंड नोट फोल्डर में हम सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं. तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की जो फैसिलिटीज़ है वो हमें यहाँ से प्राप्त होती है. तो बायोसिस डेटाबेस कवरेज हमें यहाँ पर दिया है, और उसके संदर्भ में जो स्कोप है इसका, ये हमें पता चलता है कितने प्रकार की जर्नल्स यहाँ पर हमें मिलती है और कौन से प्रकार की जर्नल्स हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं. और 5200 जर्नल्स एज वेल एज नॉन जर्नल्स लिटरेचर्स. तो जर्नल के संबंधी और नॉन जर्नल के संबंधी 5000 से ज़्यादा लिटरेचर हमें यहाँ पर प्राप्त होता है. ओके. और फिर अवेलेबल विथ ओवर 21 मिलियन रिकॉर्ड्स टू 1926. तो 1926 से नियर बाय 21 मिलियन रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं. इससे हमें पता चलता है कि इट इज़ वेरी ग्रेट स्कोप, ग्रेट कवरेज ऑफ दिस डेटाबेस. बहुत बड़ा कवरेज और बहुत बड़ा स्कोप इस डेटाबेस का है. बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर हमें मिलते हैं, और फिर ओवर 4200 जर्नल्स फ्रॉम 100 कंट्रीज. 100 कंट्रीज में से जो जो नेशनल इंटरनेशनल जर्नल है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, रेफर करने को मिलते हैं. ओवर 3,50,000 रिकॉर्ड्स एडेड एनुअली. और इससे बड़ी बात ये है कि हर साल मोर देन 3,50,000 रिकॉर्ड्स एडेड इसमें ऐड होते हैं हर साल. तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसका स्कोप कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा डेटाबेस है. देन अवेलेबल विथ ओवर 12 मिलियन रिकॉर्ड्स टू 1926 जूलॉजिकल रिकॉर्ड्स. तो इसमें नियर अबाउट 12 मिलियन रिकॉर्ड्स में प्राप्त होते हैं. जूलॉजिकल रिकॉर्ड्स भी इसमें है. ओवर 5000 जर्नल्स इसमें है, नॉन जर्नल्स इसमें है. अप्रोक्सीमेटली 75,000 रिकॉर्ड्स एडेड एनुअली. और 75,000 रिकॉर्ड्स इसके जूलॉजी की, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, एडिट किए जाते हैं. और अवेलेबल विथ ओवर 3 to 5 मिलियन रिकॉर्ड्स टू 1864. 1864 से नियर अबाउट 3 to 5 मिलियन रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पर मिलते हैं. ओके. तो from this information we understand here that the BioSys database has great coverage. Okay, we can't imagine it is very difficult to count it, so that is why it is uncount coverage covered by the BioSys database, BioSys information system. So in this way we finish this information system here regarding the information we have got. अगली जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है पेटेंट, जिसे हम PIS भी कह सकते हैं, और उसका जो फुल फॉर्म है पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन एस्टेब्लिश पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम
किस डिपार्टमेंट के द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड पॉलिसी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड पॉलिसी प्रमोशन established पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो भारत सरकार का जो मंत्रालय व्यापार और उद्योग, व्यापार मंत्रालय भारत सरकार, और उसका जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन, उसके द्वारा PIS की स्थापना की गई है। इस पर आपको सवाल आ सकता है, फ्रॉम विच मिनिस्ट्री PIS इज इस्टेब्लिश्ड। तो आपको इन 4 मंत्रालय के नाम दिए जाएंगे और यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम विच इज करेक्ट, और आपको एक चूज करने को बोलेंगे जो करेक्ट है। ओके, to obtain and maintain comprehensive collection of patent specification and patent related literatures on a worldwide basis to meet needs for technological information। तो नाम से ही हमें जानकारी प्राप्त होती है कि ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है पेटेंट के संदर्भ में काम करता है। तो पेटेंट के संदर्भ में किस एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने का काम इंफॉर्मेशन सिस्टम करती है, देखते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस यूजर्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज, बिजनेस, इन्वेंशन एंड अदर्स। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन संबंधित, नॉन गवर्नमेंट, इंडस्ट्री है, बिजनेस है, इन्वेंटर है, उसके संदर्भ में पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करती है। To provide technological information contained in patents through search service and patent copy supply service। Okay, तो यहाँ पर the PSI caters to users needs on the basis of patent documentations and computerized system for retrieval and disseminations of patents information। Okay, पेटेंट सर्च सर्विस इसके द्वारा प्राप्त की जाती है। द सर्च सर्विस में बी अवेल्ड बाय सेंडिंग द सर्च रिक्वेस्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर सर्च रिक्वेस्ट। तो सर्च सर्विस के द्वारा सर्च रिक्वेस्ट प्रोसेस की जाती है और हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्राप्त होती है। ओके, तो लिस्ट ऑफ सर्विसेज यहाँ पर दी गई है। स्टेट ऑफ आर्ट सर्च इसमें इंक्लूड है, और बायोग्राफिक सर्च है, इंग्लिश इक्विवेलेंट पेटेंट सर्च है, इक्विवेलेंट फैमिली पेटेंट सर्च है, असिस्टेड सर्च है, स्टैंडर्ड फ्रॉम सेंडिंग सर्च रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर सभी प्रकार के जो सर्च सर्विस है वो हमें मिलती है। स्टेट ऑफ आर्ट सर्च, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उसके चार्जेस यहाँ पर दिए गए हैं, ₹2000, ₹20 पर एब्स्ट्रैक्ट पेटेंट असॉर्टेड। बायोग्राफिकल सर्च, उसके बारे में भी जानकारी यहाँ पर दी है। पेटेंट सर्च, फैमिली सर्च, असिस्ट सर्च। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की सर्च सिस्टम और उसके चार्जेस और किस टॉपिक पर हम सर्च कर सकते हैं, ये जानकारी यहाँ पर PIS के द्वारा हमें दी गई है। तो ये भी यहाँ पर ख़त्म होता है। और फिर 10th जो टॉपिक है हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो ये 9th टॉपिक था, ये यहाँ पर पूरा ख़त्म होता है। उसमें हमने अलग अलग प्रकार के जो नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसका स्टडी किया। उसमें किस प्रकार की जानकारी हमने
देखी तो उसमें फुल फॉर्म क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, शॉर्ट फॉर्म क्या है, उसकी स्थापना कब हुई, उसका फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस प्रकार की सर्विस हर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा दी जाती है, उसका स्वरूप क्या है, स्कोप क्या है। ओके, सभी प्रकार की जानकारी हमने यहाँ पर प्राप्त करने का प्रयास किया और इन दिस वे वी हैव बीन फिनिश्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम 9th topic here, and after that we will start our 10th topic, library resources sharing, library consortia national international। ओके, तो लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग और लाइब्रेरी कंसोर्शिया नेशनल इंटरनेशनल लेवल, इसका स्टडी हमें यहाँ पर करना है। So in the present era of information technology, information needs of users have been increased so enormously that no single library on its own can meet their information needs. So in the present era information technology, information need of the users have been increased so enormously that single library on its own meet their information needs। तो कंसोर्शिया यानी कि क्या, और इंफॉर्मेशन नीड्स, इंफॉर्मेशन एज और यूजर्स, इसका यहाँ पर क्या संबंध है। ओके, कंसोर्शिया नेशनल इंटरनेशनल कंसोर्शिया, और कंसोर्शिया मीन्स व्हाट, इंफॉर्मेशन एज, क्या कहता है। ओके, इंफॉर्मेशन नीड क्या कहती है और उसमें यूजर्स क्या कहता है। ओके, तो इस ब्लैक बोर्ड पे जो फ्लो चार्ट आपको दिया गया है उससे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कंसोर्शिया मीन्स व्हाट, नेशनल इंटरनेशनल कंसोर्शिया क्या होता है, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन एज है तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आईसीटी वगैरह, हमें पता है कि हर मोमेंट को इंफॉर्मेशन कितनी बढ़ती जा रही है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज इट, टू कवर इट। सभी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन इतनी हर एक मोमेंट को जनरेट हो रही है कि इसे मैनेज करना डिफ़िकल्ट है, और यूजर की जो इंफॉर्मेशन नीड है हरदम हर पल चेंज होती जा रही है। तो इसके लिए नॉट अ सिंगल लाइब्रेरी इज इनफ। ओके, single library is not सिंगल लाइब्रेरी इसके लिए इनफ नहीं है, सुटेबल नहीं है, कैपेबल नहीं है। ओके, टू मैनेज ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टू फुलफिल all kinds of the information needs of users, to covers all kinds of the information which is generated each and every moment, each and every source of universe। okay, यूनिवर्स में हर एक क्षण को हर एक सोर्स से जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है वो मल्टीप्लाई के स्पीड से जनरेट हो रही है, और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू
covered by the single component, single library, and that is why the information needs of user are changing each and every moment, so it is very difficult to fulfill all kinds of information needs by the single library. सिंगल लाइब्रेरी के जरिए यूजर की इंफॉर्मेशन नीड फुलफिल करना डिफ़िकल्ट है। तो इससे क्या होता है, जैसे कि हमने सोसाइटी के बारे में देखा, नो सिंगल मैन कैन लिव अलोन, कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, बिकॉज information human being have their own information needs or other needs to fulfill. When he came in the groups, at that time he able to fulfill his needs, and after that group comes into the society, groups come into many groups, and from that society will be created there. तो इससे क्या होती है, फिर सोसाइटी जनरेट होती है। ओके, तो सोसाइटी की निर्मित क्यों हुई, जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं, ह्यूमन बीइंग, ग्रुप ऑफ पीपल्स, कम्युनिटी और फिर सोसाइटी। ओके, तो इस तरह से 4 लेवल पे सोसाइटी का निर्माण हुआ है, समाज का निर्माण हुआ है। पहले आदमी अकेला रहता था। इफ़ वी आर स्टडीड एंशिएंट पीपल, एंशिएंट ह्यूमन बीइंग, देन ही वाज लिविंग अलोन इन केव, बट आफ्टर some time, after some period has gone, he understood that it is very difficult to live alone, अकेला रहना बहुत कठिन है। so from the need and to fulfill their other needs, primary needs like shelter, foods and others needs, he came into groups, and from the groups similar likeness, similar interests of people or group of people are come together, and from this it will create the community, and when community come together then it will create the society। और जब कम्युनिटी के समूह से, ग्रुप से सोसाइटी का यहाँ पर निर्माण हुआ। तो ये हमने ह्यूमन के बारे में देखा। अब लाइब्रेरी के बारे में हमें देखना है, यूजर के बारे में। जिस तरह से इंफॉर्मेशन एज में इंफॉर्मेशन को मैनेज करना डिफ़िकल्ट है, और इंफॉर्मेशन यूजर की नीड्स चेंज हो रही है दिन ब दिन, तो इसको भी फुलफ़िल करना डिफ़िकल्ट है। तो नो सिंगल लाइब्रेरी इनफ फॉर दिस अवेलेबल टू फुलफ़िल द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर्स। तो इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी की कंसेप्ट विकसित होती है। ओके, तो ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज आर कम टुगेदर, और उससे कंसोर्शिया का निर्माण होता है। तो कंसोर्शिया का निर्माण कैसे होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि कंसोर्शिया का निर्माण क्यों होता है और कैसे होता है। ओके, तो जिस तरह से सोसाइटी का निर्माण होता है उस तरह से कंसोर्शिया का भी निर्माण होता है, ये हमने यहाँ पर देखा। और क्यों होता है, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज all kinds of the information, and it is very difficult to fulfill the information needs of human being by single entity, by single components, by single library. So from this need, group of library, 2 or more than 2 libraries are come together, and group of libraries
आर मेड देयर एंड दैट इज कॉल्ड द कंसोर्शिया। तो उसे ही हम क्या कहते हैं फिर, कंसोर्शिया कहते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि व्हाट इज मीनिंग बाय द कंसोर्शिया, कंसोर्शिया का अर्थ क्या होता है। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट वी विल अंडरस्टैंड दिस। So this has necessitate the needs of effective linkage and the cooperation between libraries। तो cooperation libraries का होना ज़रूरी होता है और उसके बेस पर, cooperation के बेस पर, resource sharing के बेस पर 2 and more than 2 libraries are come together on at one platform, that is called the consortia। Information centers for sharing available resources and information through networking। The consortia for library can be considered as a major step toward library cooperation in sharing electronic resources। कंसोर्शिया को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, कंसोर्शिया फॉर लाइब्रेरी कैन बी considered a measure toward library cooperation sharing electronic resources। Consortium should take lead role in the development of national strategy for information provisions for research in higher education। तो लाइब्रेरी कोऑपरेशन के बेस पर, रिसोर्स शेयरिंग के बेस पर, when 2 or more than 2 libraries are come together, that is built of the consortia, और उससे ही हम कंसोर्शिया की निर्मित करते हैं और कंसोर्शिया का निर्माण यहाँ पर होता है। So here we will take short break, thank you। So in this way we can understand the meaning of consortia। So it is very simple definition we can make through this topic, through this introduction, that consortia is nothing but when 2 or more than 2 libraries are come together on the base of library cooperation, on the base of resource sharing, and fulfill the information needs of users, that is called the consortia, right? So library resources, library resource sharing and networking. The term resource applies to thing, person or action which one resort to in times of needs, and sharing indicate allotting, apporting and contributing something that is owned to benefit others। So how we can apply the term resource and sharing? Okay, resource means here the things or person or action which one resorted to the times of need, and sharing indicate allotting। The resource means own possessions, okay, it's a possession of institution, it's a possession of person, or it is a kind of things, it is a kind of action, it is kind of service also, okay। But what is meant by sharing? Sharing indicate that to allotting, to apporting, to contributing, to share on the benefit of others, that is called the sharing, okay। तो रिसोर्स शेअरिंगचा अर्थ काय होतो? रिसोर्स शेअरिंग मीन्स ओन, पोजिशन बाय ओन, अपनी मालमत्ता, हमारी मालमत्ता, यानी कि जो व्यक्ति हो सकती है या थिंग्स, पदार्थ हो सकता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, जैसे कि एक्शन भी हो सकती है, सर्विस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, ओके। और शेयरिंग मीन्स इट्स आवर ओन पोजिशन बट टू शेयर अदर्स पीपल, टू बेनिफिट ऑफ अदर्स, टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स। दुसऱ्यांना त्याचा लाभ व्हावा, दूसरों को उसका फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए इस बेस पर जब हम हमारी ओन पोजीशन, ओन प्रोडक्ट, ओन सर्विस दूसरों को शेयर करते हैं तो उसको शेयरिंग कहते हैं, ओके। तो रिसोर्स शेयरिंग का मतलब सीधा हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी ओन पोजीशन दूसरों को फ़ायदा होने के लिए जब हम शेयर करते हैं तो उसको रिसोर्स शेयरिंग हम कहते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल डेफिनेशन वी कैन मेक in our own language, okay।
So resource sharing therefore refer to the reciprocity implying to partnership where each members has something useful to contribute to the others and which each is willing to and able to make available when needed. तो रिसोर्स शेयरिंग को हम पार्टनरशिप भी कह सकते हैं कि दो और दो से ज़्यादा लोग जब एक साथ मिलकर अपना ओन पोजीशन ओन प्रोडक्ट सर्विस शेयर करना चाहते हैं ताकि एक दूसरे को उसका फ़ायदा हो सके, और इसी बेस पर कोऑपरेशन के बेस पर और कोऑर्डिनेटिंग के बेस पर जब ये रिसोर्स शेयरिंग होता है तब उसे रिसोर्स शेयरिंग कहा जाता है। ओके, तो ग्रुप और कम्युनिटी और सोसाइटी की निर्मित कैसे होती है इस पर भी हमने चर्चा की। जब आप रिसोर्स शेयरिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, कंसोर्शियम मीन्स व्हाट, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको जो उदाहरण यहाँ पर दिया गया समाज का, व्यक्ति से लेकर समाज तक, व्यक्ति से लेकर समाज की निर्मित कैसे होती है, ये हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखा। और जब आप कंसोर्शिया के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो पहले इस उदाहरण को आपको समझना होगा। यदि ये उदाहरण आपके समझ में आता है तो कंसोर्शिया तुरंत आपके समझ में आ सकता है, क्योंकि सोसाइटी की जो निर्मित है या निर्माण होता है वो कोऑपरेशन के बेस पर होता है, कोऑर्डिनेशन के बेस पर होता है, इंफॉर्मेशन फुलफिल ह्यूमन नीड्स फुलफिल करने के लिए होता है, और दूसरों का हित को देखकर हमारी ओन प्रॉपर्टी शेयरिंग करने के लिए होता है। ठीक उसी तरह से कंसोर्शिया का भी जो निर्माण होता है वह लाइब्रेरी कोऑपरेशन के बेस पे होता है, कोऑर्डिनेशन के बेस पर होता है, और दूसरों को ज्ञान मिलना चाहिए, दूसरों को उसका एडवांटेज होना चाहिए, इस उदार भाव से यह कोऑर्डिनेशन होता है, कंसोर्शिया का निर्माण होता है। इंफॉर्मेशन नीड फुलफिल करने के लिए कंसोर्शिया का निर्माण होता है। रिसोर्स शेयरिंग इज एन एम्प्टी कंसेप्ट बट फॉर द अप्रोच परमिटिंग रिसोर्स शेयरिंग टू वर्क इज दैट विच एंटेल्स हैविंग रिसोर्स टू शेयर, हैविंग विलिंगनेस टू शेयर देम, हैविंग प्लान फॉर कंप्लीशनेस रिसोर्स शेयरिंग। तो ये हमें एम्प्टी कंसेप्ट लगती है, लेकिन जब शेयरिंग के साथ हम उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, हम क्या क्या शेयर कर सकते हैं, कैसे शेयर कर सकते हैं और उसका एडवांटेज कितना लोगों को हो सकता है, कितना ग्रेट ये इम्पैक्ट उसका हो सकता है, तो उसके तौर पर हमें शेयरिंग का इम्पोर्टेंस यहाँ पर समझ में आता है। यदि व्यक्ति अकेला रहता तो ग्रुप की निर्मित नहीं होती, कमिटी की निर्मित नहीं होती और समाज की निर्मित नहीं होती, और इतना बड़ा जो समाज हम देख रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हम रह रहे हैं, आनंद प्रेम भाव से रह रहे हैं, तो ये कभी नहीं होता, ये चित्र हमें दिखाई नहीं देता। ठीक उसी तरह से अगर शेयरिंग नहीं होती तो नॉलेज का आदान प्रदान भी नहीं होता। नॉलेज के आदान प्रदान के लिए और इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान के लिए शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग बड़ा इम्पोर्टेंट है, और हमारे फील्ड में तो इसका अन्य साधारण महत्व हमें यहाँ पर दिखाई देता है। So resource sharing is integral part of modern library service. In the development countries and no library service can be thought without sharing of resource. So here we can explain or give the importance of resource sharing, that it is a part of, essential part of सर्विस, वी कांट सेपरेट फ्रॉम टू ईच अदर्स, हम इसको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, इतना ये इंटीग्रेटेड पार्ट है। इन द पास्ट रिसोर्स शेयरिंग वाज लिमिटेड टू द इंटर लाइब्रेरी लोन सिस्टम।
ट्रेडिशनल लाइब्रेरी का यदि हम विचार करते हैं तो फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लिमिटेड था, क्योंकि it is limited by the only traditional library. This kind of service we will get between only two libraries. Okay, ये जो सर्विस थी हमें टू लाइब्रेरी के बीच मिलती थी, जो लाइब्रेरी एक कैंपस में थी एक सिटी में थी, उन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ करता था और एग्रीमेंट होता था ऑन द बेस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दैट इज कॉल्ड MOU। और फिर उनमें डॉक्यूमेंट शेयरिंग होती थी ऑफलाइन, तो इसे हम लिमिटेड कह सकते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन के एज में रिसोर्स शेयरिंग जब बात करते हैं तो उसमें थाउजेंड ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप और पीपल्स आ सकते हैं टुगेदर्स, और मोर देन हंड्रेड्स लाइब्रेरीज आर कम टुगेदर्स, सैकड़ों लाइब्रेरीज इसमें आ सकते, पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो इसका स्कोप कितना बड़ा है ये हम यहाँ पर अब देख सकते हैं मॉडर्न एज में। Resource sharing was limited to the interlibrary loan system. In the modern age, with the development of science and technology, innovations and of techniques, devices, resource sharing has become easier and fruitful due to the availability of database, information network and online sharing facilities. Why it is very easy to share the document? पहले मोबाइल की जो अलग अलग नेटवर्क नहीं थी, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं थी, तब डॉक्यूमेंट शेयर करना कितना डिफ़िकल्ट था। अलग अलग शेयरिंग ऐप आते थे, हम डॉक्यूमेंट बहुत दिक्कत से शेयर कर सकते थे। लेकिन अभी ऑनलाइन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम इंस्टेंटली विद इन अ मोमेंट वी कैन सेंड डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू द इंटरनेट सर्विस। इंटरनेट सर्विस के द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हम तुरंत एक क्षण में डॉक्यूमेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री सेंड कर सकते हैं। तो ये इट इज़ नथिंग बट द मिरेकल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। Thus the resource sharing system help online library to access to resource from the other library. And if we are taking example of internet library, internet is a great consortia, because thousands of or millions of websites are available on internet, and website and gateways and online database are nothing but the e-resources, e-libraries. That is why there is a lot of advantage. Millions of users, each and every day millions of users will visit to the internet consortia on internet, and there is a lot of facilities we can get from the internet, like multi-access, means at one time many users access the internet, as well as remote access from any place, anyhow, any times we can access the library. So that is why there is a lot of advantage we can take by using the internet consortia. Internet is nothing but it is a kind of consortia. इंटरनेट हा सुद्धा एक कन्सोर्शिया आहे, कारण त्यावरती थाउजंड्स ऑफ और मिलियन्स ऑफ इंटरनेट लायब्ररी ज्या आहेत किंवा वेबसाईट आहेत, डेटाबेस आहेत, त्या आपल्याला पाहायला मिळतात, आणि त्यामुळे त्यांचा ॲडव्हान्टेज आपण सायमल्टेनियसली घेऊ शकतो. आणि इंटरनेट कन्सोर्शियाचा सर्वात मोठा फायदा जो आपण बघतो की तो मल्टी ॲक्सेस करू शकतो, आणि रिमोट ॲक्सेस या दोन फॅसिलिटी त्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर आपण बघू शकतो. एनी टाईम एनी how we can access the internet library. Thus the resource sharing system help one library to access to resource of other libraries. When resource sharing is agreed upon by participating institutions, then following aspect must be planned. Identify and locate major collections, sources and materials. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई, लोकेट और मेजर कलेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. असेंबल, पब्लिश, डिस्ट्रीब्यूट कलेक्टिव इंफॉर्मेशन फॉर ऑल पार्टिसिपेटिव बॉडीज. वर्कआउट बेसिस फॉर शेयरिंग रेफरेंस सर्विस
लैंडिंग सर्विस, कॉपिंग सर्विस एक्सेस कर सकते हैं, मटेरियल डिलीवरी सर्विस एंड लिस्ट ऑफ होल्डिंग कर सकते हैं इसमें, एस्टेब्लिश ऑफ मीन्स ऑफ शेयरिंग आइडियाज़, डेवलपमेंट प्रॉब्लम इन द फॉर्म्स ऑफ न्यूज़लेटर फाइंड आउट कर सकते हैं, प्लान फॉर न्यू डेवलपमेंट इन द नॉलेज व्हाट अदर्स आर डूइंग, ये यहाँ पर देख सकते हैं, डेवलपमेंट नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी भी यहाँ पर देख सकते हैं। देन द फॉलोइंग आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग टू पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन, और अलग अलग प्रकार का जो एडवांटेज है हमें रिसोर्स शेयरिंग के द्वारा यहाँ पर मिलता है, तो कौन सा है, इजी एक्सेस मटेरियल्स। ओके, जब रिसोर्स शेयरिंग हम करते हैं, डॉक्यूमेंट शेयरिंग करते हैं ऑन द इंटरनेट, तो ह्यूज एक्सेस हमें यहाँ पर मिलता है। अनेबल टू कोऑपरेटिंग इंस्टीट्यूट एक्सटेंड लिमिट रिसोर्सेज, और आउट ऑफ लिमिटेशन रिसोर्स हमें प्राप्त होते हैं, अलाउंग ग्रेट स्टाफ स्पेशलाइजेशन, इम्प्रूव द सर्विस टू यूजर्स, हम यूजर को सर्विस इम्प्रूव करके दे सकते हैं, अवॉइड अननेसेसरी डुप्लीकेशन, reduce the numbers of places, improve the working relationship between cooperating libraries and resource sharing, refer to joint use of resource available on system or network by users, peripherals. In the language of information management, when we talk about resource sharing, we simply means collective use of information to all types of various users and users from control coordinating unit or from within network components at a reduced cost with easy accessibility. तो रिसोर्स शेयरिंग के द्वारा हमें क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, इसकी जानकारी हमने यहाँ पर देखी। लाइब्रेरी कोऑपरेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग एक्टिविटीज कैन टेक प्लेस इन सेवरल फॉर्म्स एंड कैन हैपन इट एट मेनी लेवल्स विच इंक्लूड्स। तो लाइब्रेरी शेयरिंग और रिसोर्स शेयरिंग कई लेवल पे काम करते हैं, जैसे कि इंटर लाइब्रेरी लोन के द्वारा, एक्सचेंज और शेयरिंग एक्सपर्टाइज के द्वारा, एक्सचेंज ऑफ पब्लिकेशन के द्वारा, शेयरिंग ऑफ बिब्लियोग्राफी के द्वारा, कॉपरेशन एक्विजिशन के द्वारा, प्रिपरेशन ऑफ यूनियन लिस्ट के द्वारा, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप के द्वारा, ये सभी जो अलग अलग सर्विसेज है, अलग अलग जो एक्टिविटीज़ है, उनके द्वारा हम रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं और रिसोर्स शेयरिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो इस तरह से नेटवर्क इज फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दैट लिंक्स ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हु हैव एग्रीड टू वर्क टुगेदर एंड शेयर रिसोर्स। और जब इंटरनेट पे हम काम करते हैं और इंटरनेट पे अलग अलग प्रकार के डोमेन हम देखते हैं, अलग अलग प्रकार की वेबसाइट और गेटवेज हम देखते हैं, डेटाबेस देखते हैं, तो दे आर एग्रीड ऑन पर्टिकुलर वन एग्रीमेंट दैट दे आर रेडी टू शेयर देयर डॉक्यूमेंट्स। तो जब लोग इंटरनेट पे आते हैं वेबसाइट के द्वारा, डेटाबेस के द्वारा और गेटवेज के द्वारा, ऐप्स के द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा, तो वे इंटरनेट पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं, रिसोर्स शेयरिंग की पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं, और तभी जाकर वे इंटरनेट पे आते हैं। यदि उनको ये पॉलिसी मानने नहीं होती, एग्री नहीं होती, तो वे कभी नहीं आते इंटरनेट पे। वे आते ही इस वजह से क्योंकि उनको वो पॉलिसी एग्री होती है रिसोर्स शेयरिंग की। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंटरनेट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर रिसोर्स शेयरिंग बिकॉज इट इज़ अ group of website. Web is nothing but the group of website, and that is why there are many libraries are come together at one platform, and they are share their document, their ideas, their own position to the others benefit. So consortia have great importance in today's age, information age, and solve the different types of needs, information needs of users.